Now, hello class 12th. Let's do the rest of our questions of exercise 5.1. We have done question number 6 to 30. If you've seen my videos, two videos of this exercise I have uploaded. Now 1 to 5 questions were left and 31 to 34. If you have done 6 to 30th question, then question number 1 to 5 now will be very much easier for you. Now see, first question is prove that the function this is a continuous at this and this 0 minus and 5. Note beta, what is this? 5x minus c. Which kind of function is this? This is a polynomial function, linear polynomial function. Remember one thing, any kind of any kind of polynomial function, whether it's linear polynomial or quadratic polynomial or cubic polynomial or any of a higher degree polynomial, always any polynomial is a continuous function. So 5x minus c है तो बेटा polynomial function है तो it is a continuous. But since he said you have to prove it at 0 minus and 5, so it's not difficult for you to prove. You have done so many questions, so I have done one for you also. 0 पे चेक करते हैं इसको. At limit x tends to 0 negative, how will you write? 5x minus c, limit h tends to 0, 5 of 0 minus h. If you finally solve it, answer will be minus c. At 0 positive पे check करो तो this the way, तो again minus c. At f of 0, आंसर विल बी वॉट 5 of 0 minus c, so minus c. So तीनों क्या है इक्वल आ गए, माइनस सी माइनस सी माइनस सी. हैंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. एंड मोर ओवर नोट वन थिंग, आगे जाके भी मैं एक्सप्लेन करूँगी बेटा, जहाँ कोई फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रही. एट लेस देन 0 भी 5x माइनस 3 है, एट ग्रेटर देन 0 भी यही है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. एंड मोर ओवर इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए भी कॉन्टीन्यूस है. बट उन्होंने बोला तो वी हैव डन इट, सो यू कैन प्रूव इट योर सेल्फ बाय एट माइनस 5. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Examine the continuity of the function this at x is equal to 3. You can do it yourself, but है क्या बेटा ये definitely it's a what क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट्स अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. कहीं पे डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही. लेस देन 3 पे भी डेफिनेशन यही है, मोर देन 3 पे भी यही, मतलब 3 नेगेटिव पे भी आप इसी को ही लोगे, 3 पॉजिटिव पे भी. एंड एट 3 अब आप चेक करो तो व्हाट विल बी द आंसर? सी स्क्वायर 9 टू द 18 माइनस 1 17. तो आपको तीनों आंसर जो हैं एट 3 लेफ्ट हैंड लिमिट जब लोगे एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव और एट एक्स 3, तो आपका आंसर मस्ट बी व्हाट इज इट 17 ही आएगा. So it is again a continuous function. You can do it yourself. Now, third question. First, he said prove it, examine the following functions for continuity. So what is this? So again you will write that this is a linear function, so it's a continuous function, linear polynomial, so it's a continuous function. और अगर बेटा कहीं आपको प्रूव करना तो विद द हेल्प ऑफ सी, जो मैंने क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज में भी कराया था, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव पे जनरल, लेट सी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और यू कैन राइट एनी इंटीजर्स और एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, राइट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि डोमेन क्या होती है इसकी रियल नंबर. एट एनी रियल नंबर दिस पॉलिनोमियल इज डिफाइंड, तो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है. तो हमने वी विल टेक लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, एट एट सी you can prove that this is a continuous function. Now come to your B part. He said f of x is this. Now again this is what rational function हो गया, क्योंकि something over something rational function है, तो again this is continuous function. but बेटा rational function में नीचे वाला denominator should always be defined, कभी जीरो नहीं होना चाहिए. तो उसने बोल ही दिया कि it x is not equal to 5, because if x is equal to 5 तो gx will not be defined. ये अगर इसको gx माने तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो बस वो तो उसने बोल रही है. So since it's a rational function and its x is always given that not equal to 5, so this is again a continuous function. Now come to this. अब यहाँ पे भी उसने बोल दिया x is not equal to -5, क्योंकि अगर मैं -5 लेती हूँ तो x को चाहे मैं नीचे -5 डालूँ बेटा या ऊपर -5 डालूँ तो आंसर विल बी 0.0, तो वो तो इनडिटर्मिनेट हो जाता है. तो वो तो उसने बोल ही दिया कि नहीं. तो नाउ व्हाट इज दिस? x के -5 इज विच फंक्शन? Quadratic polynomial function. X plus 5 is what kind of function? Linear polynomial function. fx is what? Continuous function. If अगर आप इसको px ले लो, px is continuous function upon what? gx is continuous function. px भी continuous है, gx भी continuous है, तो उनका over भी continuous ही होएगा, क्योंकि हमने ये algebra पढ़ा हुआ है. Now remember, मॉडुलस फंक्शंस आर अगेन ऑलवेज कॉन्टीन्यूस. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉडुलस है, तो दिस इज अगेन अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन. ये तो आपको लर्न भी करने हैं, ध्यान पे भी रखना है, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करो तो यू विल सी दैट ग्राफ विल बी ऑफ दिस काइंड. क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो तो बेटा व्हाट इज इट? एक्स को 5 ले लो एक बार, तो क्या आएगा? एफ एक्स इज 0,
बाकी तो आपके सब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप लेते जाओगे तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. At x is equal to 5, suppose this is 5, fx is what? 0. So graph will be like this. So you can draw this graph by lifting up your pen. Without lifting your pen you can draw. So this is that's why modular functions are always continuous functions. So then comes to your fourth question, easy, you can do it. Fifth question में भी check करो बेटा. Is the function f defined by this continues at x is equal to 0, at x is equal to 1, at x is equal to 2. This you can do yourself, but मैं orally बता सकती हूँ बेटा. This function is what? Continues at x is equal to 0 है. Yes. क्यों है? क्योंकि आप देखो फंक्शन की डेफिनेशन कहीं चेंज हो रही. 0 के थोड़ा सा कम भी क्या होएगा? लेस देन 1. और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा भी क्या होएगा? वो भी लेस देन 1 है. तो दोनों पे फंक्शन की डेफिनेशन इज़ व्हाट? x. तो अगर आप चेक भी करो तो आपका 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव और 0 पे आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि फंक्शन तो x ही ले रहे हो आप. देन कम्स टू एट 1. 1 के लेस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है. और 1 से ग्रेटर पे क्या है? 5 है. तो जब x टेंड्स टू 1 नेगेटिव आप लोगे तो आपका आंसर विल बी व्हाट? आप इसको चेक करके डालो तो आपका क्या आंसर आएगा? 1 माइनस एच. तो 1 माइनस एच में क्या आएगा? 1 आंसर आ गया. देन इसमें डालोगे तो ग्रेटर देन 1, मतलब दिस x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पे तो आंसर 5 आ रहा है. तो यही पता चल गया LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. सो एट 1 दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अगेन एट 2 दिस इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि x 2 से थोड़ा सा कम भी क्या वैल्यू दे रहा है? 5. 2 क्योंकि ग्रेटर देन 1 पे तो वैल्यू 5 ही है. 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2 पॉजिटिव पे भी क्या वैल्यू देगा? 5. और एट 2 पे भी, क्योंकि वो ग्रेटर देन 2 ही है, तो 5. तो हैंस इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. Now come to your 31 to 34 questions. For that I have to discuss with you a theorem, that is theorem 2. This is given here. Suppose that f and g are real valued functions. कोई दो फंक्शंस है बेटा, दो f भी एक फंक्शन है, g भी एक फंक्शन है. Such that f of g is defined at c. Now what is it? इसका मतलब इसको हम बोलते हैं composite function. Detail you can do in your while we will do our first chapter, but इसको पढ़ो. ये क्या? इसको हम पढ़ते हैं f of gx. ये फॉग, और दिस इज एक्चुअली कॉम्पोजिट फंक्शन है बेटा. तो बोल रहा है इफ़, अब यहाँ पे थ्योरम का रिजल्ट आपको कुछ प्रूव नहीं करना. उसने बोला इफ़ जी इज़ कॉन्टिन्यूज एट सी. कोई जी फंक्शन जो था वो कॉन्टिन्यूज है एट सी पे, एंड एफ इज़ कॉन्टिन्यूज एट जी सी, कि यहाँ पे जो जिस पे वो कॉन्टिन्यूज है जी सी पे, देन एफ ऑफ जी इज़ कॉन्टिन्यूज एट सी. तो द थिंग इज दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर इफ़ यू जस्ट रीड इट. देखो क्या कह रहा है वो. शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब क्या है बेटा? एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और एक साइन एक्स है. तो ही सेड ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. विच फंक्शन? द फंक्शन एफ मे बी थॉट ऑफ कॉम्पोजिशन है किसकी? जी ऑफ एच. मतलब उसने एक फंक्शन को जी एक्स ले लिया, एक को एच एक्स ले लिया, ऑफ द टू फंक्शन जी एंड एच. दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर व्हेन आई विल टेक अप योर क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम द एक्सरसाइज. अभी वो क्या बोल रहा है? जी एक्स फंक्शन को उसने साइन एक्स माना और एच एक्स को मान दिया एक्स स्क्वायर. नाउ यू सी एक्स स्क्वायर क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. वाई? दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा इन इट्स डोमेन. और जब ये डोमेन कुछ भी इस पर डालो एक्स स्क्वायर, तो यू गेट अ रियल नंबर. तो बेटा जब आप इसका आंसर यहाँ पे डालोगे तो वो भी क्या होएगा? क्योंकि आप साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑल्सो. सो नाउ सिंस बोथ जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, so by theorem 2 it can be deduced that f is a continuous function. Now see, I have taken your question number 31 of your exercise. This is it. fx is equal to cos x square. आप इसको प्रॉपर कैसे लिखोगे? px is equal to cos x, qx is equal to x square. हमने दो फंक्शंस देख लिए, एक cos x है और एक x square है. Now what is it? आप लिखोगे इसको, अगर आपने कॉम्पोजिट फॉर्म में लिखते हैं p of qx, जो आपका बाद में फंक्शन है उसको मैंने क्यू एक्स लिए, तो आप लिखो इसको पी ऑफ क्यू एक्स. अब पी ऑफ क्यू एक्स एक्चुअली क्या है? पी ऑफ क्यू एक्स मीन्स वॉट? पी एक्स तो क्या था? कॉस. अगर यहाँ बेटा एक्स है तो यहाँ एक्स आ गया. अब यहाँ क्यू एक्स है तो पी ऑफ क्यू एक्स का एक्चुअली तो मतलब क्या होना चाहिए कि कॉस ऑफ क्यू एक्स. लेकिन क्यू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर. तो क्या बन गया? कॉस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर. तो पी ऑफ क्यू एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर. नो वॉट इज दिस? एफ एक्स इज पी ऑफ क्यू एक्स. नो ये थ्योरेटिकली आप ऐसे ही लिखोगे. नो सिंस क्यू एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्यू एक्स क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन लिख देना. क्यू एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट्स कॉन्टिन्यूज एट एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. एंड पी एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एनी वैल्यू ऑफ क्यू एक्स, तो वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर अगेन. Therefore implies p of qx is also continuous.
that is fx is continuous function. Similarly question number 32 you can do it like this. अब इस पे मैंने लिख के दिखा दिया, this is cos of x mod है, हमने px को माना mod f x, qx को माना cos x. अभी क्या होएगा फिर, p of qx is what, p of qx can be written like this, तो p of qx, लेकिन qx क्या है, cos x है, और जिसका भी यहाँ p के साथ जो भी नंबर आता है उसका मॉड हो जाता है, तो इसका मॉड हो गया. इट मीन्स व्हाट, अगेन एग्जैक्टली सेम, p of qx is your fx, तो बाकी सारा कुछ यही इस फेज से आप लिखोगे. दिस वे यू कैन डू इवन योर क्वेश्चन नंबर 33 ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. ही सेड फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, कन्फ्यूजन के इसलिए उसने बोल दिया फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय दिस. बट बेटा ये क्या है, मॉड x इज व्हाट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. मॉड ऑफ x प्लस वन अगेन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. मॉड में मैंने बोला हमेशा फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होता है. मॉड ऑफ x लेट इट बी क्या है, px है. मॉड ऑफ x प्लस वन लेट इट बी hx है. px is continuous function, hx is continuous function. By using algebra of continuous function, px minus hx is also continuous function. So there is no point of discontinuity for this function. So that's all about your exercise 5.1. I have taken almost all the questions in detail. Still if you have any problem, let me know. Otherwise from tomorrow onwards I am going to start with differentiability, and I'll send also few extra questions, because you definitely will get 4 mark questions from this exercise. And almost again I am telling, all questions are discussed. Very important exercise, don't leave any question. Have a good day.